This one, G file, g.py is in this. You have applied two type of operations, reading and writing. First one is for reading and then for writing and then for reading the data. ठीक है, बट ये जो आपने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, रीड करना, राइट करना एंड देन अपडेट करना, ये आपने डिफरेंट फाइल्स में किए हैं अभी ना. एक जगह तो आपने एक ही फाइल में आपने कोड नहीं लिखा. फॉर रीडिंग एंड राइटिंग देयर इज अ जी फाइल and in the second one this one again. Next file is for updating the records. So in single file how you can do all type of operations. हमने एक फाइल में हमने अपडेट का कोड लिखा था प्रीवियस क्लासेस में जो हमने किया था, एंड देन इन वन फाइल वी हैव रिटन द कोड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. बट नाउ वी विल यूज सिंगल फाइल फॉर applying all type of operations. Is it if you want to write some data? So for that create a function by using keyword def and then use any name you can use, like write data is the function name by using which you will write some data in your file. Inside this function we will write the code for writing the contents to the binary file, and this one is the code. So I will just directly copy all the code, all the lines and then put here. Okay, so this one is the code for writing the data, and which we have covered in the starting of binary files. First of all import the library, after that opening the file in write mode, after that ask the user for entering a number either 0 or 1. So in that case value will be passed by the user. After that if its value is 1 which is passed by the user, in that case you will again ask from user to enter roll number, name and marks. After that from these records dictionary will be created, and then using dump function we will write the dictionary back to the binary file. Inside function the code for writing the content is written. So let us create the second function for reading the data. You can give any name like read data, name of another function. Okay, so for reading the contents of the binary file we have covered the code. यहाँ कोड कर चुके हैं in the file G. So just I will copy paste all the codes from here and put it in our main file. ठीक है, क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं. In this case what we are doing, we are opening the file in read mode. After that inside while block there is a try and cache block. Inside try block we will use the load function for reading the records, and since one by one we will read the records, that's why while function is there, and then except block will accept the exception, and in case when exception will be encountered your loop will stop. क्यों stop हो जाएगा? Because break statement is there. Okay, so this is the code for reading the data from binary file. Third operation, updating the records. In the last class we have covered updating the records, how to update the records present in a binary file. So we will use the same code and import pickle module. This module should be written in the starting. Okay, first instruction will be importing the module. Function we will create it for updating the records, because updating records we have also covered. ठीक है, इसको now updating the records, इसके लिए हमने ये वाली फाइल में इस कोड को लिखा है, that is I this one how to update the records. So I will just directly copy paste all the codes, all the instructions. ठीक है, इस पूरे को कॉपी पेस्ट किया है जस्ट यहाँ से यहाँ तक. इसको मैं तो रीड कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी करिए देन पेस्ट इन योर मेन फाइल. This is the code for updating the records.
हाँ जी, इसको इंडेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो आप ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है ना, तो फंक्शन के अंदर ही लिखोगे कोड को, ठीक है। फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन डिफाइन किया, अपडेट फंक्शन इज दिया, दैट्स वाई ऑल द कोड्स विल बी रिटन इनसाइड दिस। नाउ सी अपडेट डाटा, फिर से सुन लीजिए, हमने जो पिछले क्लास में किया था वही है, अपडेटिंग द डाटा, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द existing file in read mode. After that reclst, this one is written record list, ठीक है। इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में reclst ये लिखा हुआ है। तो दिस इज द एम्प्टी लिस्ट, इनिशियली दिस लिस्ट इज doesn't have any data. Then r, what is r? It will be the roll number which is to be updated, whose data is to be updated, ठीक है। वो रोल नंबर है जिस रोल नंबर का आप डाटा चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हमने जो पिछले क्लासेस में किया था, बाइनरी फाइल्स में 2 बच्चों के रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, याद है या नहीं? याद है, 2 बच्चों के रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, एक का रोल नंबर था 1, एक का रोल नंबर था 2, ठीक है। देन आपको वो रोल नंबर यूज़र से लेना है। मान लो यूज़र को रोल नंबर 1 के मार्क्स चेंज करने हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 1। एम क्या हो गए? करेक्ट मार्क्स, तो वो भी यूज़र ही एंटर करेगा कि उसको कौन से करेक्ट मार्क्स जो है डालने हैं अपनी बाइनरी फाइल में। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस? व्हाइल, ट्रू, ट्राई, ब्लॉक, लोड फंक्शन, देन अपेंड फंक्शन, एक्सेप्ट, एंड ऑफ द फाइल, एरर एंड ब्रेक। यहाँ से यहाँ तक आप फाइल के जो भी कंटेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको रीड कर रहे हैं। रीड कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब देखिए, जो आप रिकॉर्ड रीड करेंगे, रिकॉर्ड किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी विल बी इंसर्टेड इन लिस्ट, लिस्ट में आपका रिकॉर्ड लिस्ट जो है उसके अंदर डिक्शनरीज आ गई। अब देखिए लेंथ ऑफ द लिस्ट कितनी होगी? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने बाइनरी फाइल में 2 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, ये वाला कोड है ना, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। एंटर द रोल नंबर टू बी अब विच इज टू बी अपडेटेड। सपोज मैंने 1 डाला, देन करेक्ट मार्क्स उसके मैंने 50 डाल दिए, ठीक है। अब देखो रिकॉर्ड्स क्या है, पहले ये देख लो कि एक रोल नंबर हमने 1 डाले थे, उसका नेम और उसके मार्क्स डाले थे, उसके बाद रोल नंबर 2 है, सुनील है, और उसके मार्क्स डाले हुए हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड्स को 1 by 1 रीड कर रहे हैं बाय यूजिंग लोड फंक्शन। आफ्टर दैट यू आर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स इन REC लिस्ट। ये जो वेरिएबल है, एक लिस्ट है, उसमें आपने रिकॉर्ड्स को एंटर कर दिया। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। देन योर लूप विल स्टार्ट, यहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा। लूप में क्या होगा? ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर डिक्शनरी। लिस्ट है, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ये जो फर्स्ट डिक्शनरी एलिमेंट है, दिस वन। देन सेकेंड रिकॉर्ड, अब समझ में आ गया? RECLST, व्हाट इज दिस? लिस्ट है ये। लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट होगा जो भी बाइनरी फाइल का फर्स्ट रिकॉर्ड लोड फंक्शन के थ्रू रीड किया है। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड क्या होगा? जो भी बाइनरी फाइल में सेकंड रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए थे वो डिक्शनरी फॉर्म में एंटर किए थे, दैट्स वाई डिक्शनरी है फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आया? सेकंड एलिमेंट भी डिक्शनरी है। जैसे हमने ये किया, उसके बाद मैंने आपको बोला था दैट आप ये लूप जो है उनको यूज़ करिए। जो कोड है उसमें जस्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी है। अब जैसे लिस्ट पता है आपको, ये वाली लिस्ट है REC लिस्ट, दिस वन। लिस्ट एलिमेंट्स भी पता है, अब ये लूप अप्लाई कर सकते हैं।
So for I in range length of list. So list is this, having two dictionaries, having two elements. So what will be the length of this? 2. Then I, लेंथ ऑफ द लिस्ट आपने मीन्स इसकी जगह पर क्या होगा? 2 होगा, मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ आई. ये लूप चलाना है आपको, बस लूप ही तो चलाना है. अब रेंज फंक्शन का सिंटेक्स था स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप अकॉर्डिंग टू विच नंबर्स विल बी क्रिएटेड. सो द नंबर्स विच विल बी क्रिएटेड आर 0, 1 एंड 2 नहीं होगा बिकॉज 2 इज द स्टॉप वैल्यू. सो 0 and 1, ओनली 2 times this loop will be executed. So first time when your loop will execute, so value of I will be 0. So just आपको ये चेक करना है that what is this list 0 and roll number is written ना. This one. So what is the value of this value? ये लिस्ट है, लिस्ट में 0 स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कराया था लिस्ट में. तो आप कोई भी लिस्ट हो उसमें इंडेक्स वैल्यू 0 पर रोल नंबर को चेक करना है. 1 स्टार्टिंग वैल्यू, जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू है 0, उस पर फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट इज फर्स्ट डिक्शनरी. इन दिस केस फर्स्ट डिक्शनरी के अंदर भी रोल नंबर को चेक करना है. व्हाट इज द रोल नंबर? तो रोल नंबर इज 1 फर्स्ट डिक्शनरी के केस में. अब आर क्या है? आर मैंने बोला था स्टार्टिंग में जो यूजर को एंटर करना है. R and M, these are the inputs taken from user. ये inputs हैं user से जो हमने लिए हैं. What are these? These are the inputs taken from user. Then suppose you want to change the record of first student. First student का record change करना है तो it means you will pass the roll number 1 and 50 want to change the marks. ये जब रन करते टाइम मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले किया था that रोल नंबर आर जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 1 एंड देन एम करेक्ट मार्क्स जो यूजर को एंटर करने हैं इट इज़ 50. सो आर एंड एम इनकी वैल्यूज पता है. आर इज 1. सो सिंस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है ना. हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of equal to operator 1 value is there and on right hand side also you have 1. So 1 is equal to 1 होता है. So condition is true, so this instruction will be executed. Condition true होने पर ये execute होगी. It means what is the meaning of this? इसका मतलब ये है कि RECLST this is the list. इंडेक्स वैल्यू 0 ही रहेगी. इस इंडेक्स वैल्यू 0 पर जो मार्क्स हैं उसको चेंज करना है. इसकी वैल्यू अब जो मैंने नहीं दी थी m वैल्यू वो देनी है. तो m मैंने जो पास किया था इट इज़ 50. तो 50 तो पहले कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है. जैसे इसके मार्क्स हैं 85 पहले स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने क्या मार्क्स दिए हैं 50. तो ये जो 50 ये तो अपडेट होने के बाद है. इसको चेंज कर लेते हैं मार्क्स. इसके ओरिजिनल मार्क्स सपोज हम लेते हैं 25. पहले 25 मार्क्स थे, अब मैंने अगर 50 दिए हैं तो कहाँ चेंज होगा? कहाँ चेंज होगा बताइए? इसके जो मार्क्स 25 पहले थे वो 50 में चेंज हो जाएंगे. समझ आ गया? वो 50 हो गए. तो इस तरीके से रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए एक यूज़ किया है लूप. अब रिकॉर्ड तो चेंज किस में हुआ है? लिस्ट में ना. अब उस लिस्ट को जो अपडेटेड लिस्ट के डाटा है उसको फिर से फाइल में लिखोगे. फिर से इसलिए हमने फाइल को ओपन किया है राइट मोड में. फिर हमने लूप यूज़ किया है फिर से लिस्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए. नाउ व्हाट इज दिस एक्स? ये तो लिस्ट है. डायरेक्टली यू आर पासिंग लिस्ट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज द रिकॉर्ड्स जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं लिस्ट में. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिस्ट हुज नेम इज, नेम ऑफ द लिस्ट क्या है? हुज नेम इज this one. It means first value of x will be the first dictionary. क्या वैल्यू होगी पहली? x की डिक्शनरी होगी because first element is dictionary. So after that your loop will start and using dump function we will write the dictionary, first dictionary in the binary file.
और फर्स्ट डिक्शनरी में अब जो कंटेंट्स है वो अपडेटेड है, क्योंकि मार्क्स को हमने चेंज किया था, पहले 25 थे अब 50 किया है। तो अपडेटेड रिकॉर्ड विल बी रिटर्न बैक टू द बाइनरी फाइल। नेक्स्ट सेकेंड टाइम योर लूप विल स्टार्ट, सेकेंड टाइम भी स्टार्ट होगा बिकॉज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी ऑफ द लिस्ट इज डिक्शनरी। सेकेंड एलिमेंट लिस्ट का ये डिक्शनरी है, तो सेकेंड रिकॉर्ड जो रोल नंबर 2 नेम सुनील और मार्क्स 85 ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा सेलेक्ट होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी सेकेंड डिक्शनरी। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड डिक्शनरी को फिर से फाइल में लिखेंगे और इस तरीके से जो बाइनरी फाइल है वो उसमें रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। हम एक में ही सारे ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारा कोड था मेन, ठीक है। अब देखिए इस कोड में फर्स्ट फंक्शन जिसमें हम राइट करेंगे, सेकेंड फंक्शन इज फॉर रीडिंग द डाटा एंड देन थर्ड फंक्शन इज फॉर अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ फाइल के अंदर जो प्रेजेंट है। देन मेन प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल कॉल द फंक्शंस इन सीक्वेंस, हम वन बाय वन फंक्शंस को कॉल करेंगे। आफ्टर डिफाइनिंग द फंक्शन द कोड्स रिटन इन फंक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनटिल और अनलेस यू कॉल द फंक्शन। फिर से सुनिए, फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने, सारे कोड्स लिख दिए, जैसे इसमें अपडेट डाटा में आपने सारा कोड सब कुछ लिख दिया। ये फंक्शन के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे। सो आवर मेन टास्क इज कॉलिंग द फंक्शंस वन बाय वन। सो फॉर कॉलिंग ऑल द फंक्शंस वी विल यूज लूप इन आवर मेन प्रोग्राम। सो लेट अस सेट व्हाइल लूप टू ट्रू, ठीक है, उसकी कंडीशन हमने दे दी व्हाइल लूप की ट्रू। अब नेक्स्ट टाइम लेट अस टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एज इनपुट। इनपुट फंक्शन के थ्रू एक हम नंबर एंटर कराएंगे यूजर से एंड लेट अस गिव अ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग दैट एंटर योर चॉइस, एंटरिंग योर चॉइस। द यूजर विल एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, एंटर करेगा वैल्यू n की। उससे पहले हम एक अपना मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं दैट दिस इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर की हम नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो, जस्ट इसके लिए है। सो फर्स्ट इज राइटिंग, देन सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड वन इज रीड डेटा फ्रॉम द फाइल एंड देन थर्ड वन अपडेट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ फाइल, ठीक है। तो ये प्रिंट इंस्ट्रक्शन है, ये तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा। आफ्टर दैट यूजर विल एंटर हिज और हर चॉइस, वो अपनी चॉइस एंटर करेगा, मीन्स वैल्यू एंटर करेगा इफ इट एंटर 1, ओके। यूजर ने अगर एंटर किया है 1, इन दैट केस वी नीड टू कॉल राइट ऑपरेशन। राइट वाला जो फंक्शन हमने यूज़ किया है, क्रिएट किया है, उसको हम कॉल करेंगे। सो इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, इन दैट केस वी विल कॉल विच फंक्शन। सबसे पहला जो है हम राइट करना चाहते हैं डाटा को फाइल में, तो उसके लिए राइट डाटा के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है राइट डाटा। दिस फंक्शन इज यूज ना, इज इट ओके? सो राइट डाटा फंक्शन विल बी कॉल्ड इन दिस केस, इज इट ओके? अगर यूजर ने एंटर किया है n की वैल्यू 1, तो उस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, राइट डाटा। और राइट डाटा फंक्शन कॉल हुआ, इट मीन्स कि ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी इसके अंदर जो लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ आ गया? तो राइट डाटा फंक्शन कॉल हुआ है तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, in that case we will call the second function read function is there, so we will call the read function. Read data. If user pass the value of n as 3, suppose it pass the value 3, he or she passes the value 3, in that case update function will be called. And in case user pass the value of n 4, n की यूज़र ने, तो उस केस में क्या होगा, your loop will stop. So write break statement. So this is the main program. main program ये है, समझ आ गया? इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले
ये जो कोड्स है सेपरेट कराए थे, अपडेट कैसे करना है रिकॉर्ड को, रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है। फिर उसके बाद जस्ट मैंने अब लास्ट में आपको बताया कि हाउ टू राइट ऑल द ऑपरेशंस इन अ सिंगल फाइल। समझ आ गया। अब देखिए सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दिस वन इंपोर्ट पिकल, ये एग्जीक्यूट होगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो अभी के लिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपकी पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट होगी, देन फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद ये इस पर आते हैं, इसमें भी फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके अंदर भी सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी। थर्ड में ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये भी फंक्शन डेफिनेशन है, अपडेट डाटा, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, व्हाइल ट्रू। समझ आ रहा है, दिस इज द सेकेंड इंस्ट्रक्शन। सेकेंड नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी इट इज दिस वन, व्हाइल ट्रू योर लूप विल स्टार्ट। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगी इन विच ये लिखा हुआ आएगा, प्रिंट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, मेन्यू राइट डाटा वन, डाटा इन द फाइल, रीड डाटा एंड अपडेट रिकॉर्ड्स, ये आएंगे। सेकेंड थर्ड नंबर पर ये एग्जीक्यूट होगी। फोर्थ नंबर पर कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दिस वन, एंटर योर चॉइस, इसमें चॉइस एंटर करेगा यूज़र। फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर यूज़र ने एंटर किया है n की वैल्यू 1, इन दैट केस राइट फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तब आपका कंट्रोल एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शंस की स्टार्ट होगी वो यहाँ से फंक्शन डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट होंगी एंड दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट होंगी इंस्ट्रक्शंस। व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, व्हाइल लूप के अंदर ये हमने यहाँ फंक्शंस कॉल कर रखे हैं। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा फंक्शन कॉल किया है, राइट डाटा, तो जो राइट डाटा वाला फंक्शन है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ यूज़र ने एंटर किया है n की वैल्यू 2, इन दैट केस रीड डाटा फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो रीड डाटा वाला फंक्शन कॉल किया है तो रीड होगा डाटा, ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। समझ में आ गया। अगर यूज़र एंटर करता है वैल्यू 3, इन दैट केस अपडेट डाटा, दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट। तो इस केस में ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो अपडेट डाटा वाली इंस्ट्रक्शंस है ये एग्जीक्यूट होंगी। इज इट ओके। एंड देन अगर यूज़र एंटर करता है n की वैल्यू 4, इन दैट केस ब्रेक इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन होगी दिस विल बी इंपोर्ट पिकर, योर लाइब्रेरी विल बी इंपोर्टेड। आफ्टर दैट ये फंक्शन डेफिनेशंस आपने लिखी हैं, राइट डाटा, रीड डाटा, अपडेट डाटा, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक आप इनको कॉल नहीं करोगे। सो योर मेन प्रोग्राम कोड इज दिस वन, यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा इन विच यू लूप इज रिटन। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज योर मेन प्रोग्राम, फ्रॉम दिस पॉइंट योर प्रोग्राम विल स्टार्ट, दिस इज द मेन प्रोग्राम, स्टार्ट यहाँ से होगा। व्हाइल ट्रू सबसे पहले लिखा हुआ मेन्यू राइट डाटा इन द फाइल, रीड डाटा एंड अपडेट रिकॉर्ड्स, ये लिखा हुआ आएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद चॉइस एंटर करेगा यूज़र एंड देन ये इनमें से जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है वो कर सकता है। अब जैसे इसको मैंने सेव किया एंड देन रन करके देख लेते हैं फटाफट, इसको देखो रन। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेन्यू राइट डाटा इन फाइल, रीड डाटा फ्रॉम फाइल, अपडेट रिकॉर्ड्स, एंटर योर चॉइस, ये लिखा हुआ आ रहा है या नहीं, दिख रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए पहले तो प्रिंट इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसके बाद एंटर योर चॉइस ये लिखा हुआ है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेन्यू में आपने ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यूज़र को कि आप अगर 1 एंटर करेंगे n की वैल्यू तो आप राइट कर सकते हैं डाटा फाइल में। इफ़ यूज़र आप अगर n की वैल्यू 2 एंटर करेंगे तो आप रीड कर सकते हैं। अगर आप 3 एंटर करेंगे इन दैट केस यू कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स। समझ में आ गया। एंटर योर चॉइस ये वाला लिखा हुआ आ रहा है, ये वाली प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, इट मीन्स कि जो यूज़र एंटर करेगा वो n की वैल्यू होगी। एंटर योर चॉइस सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू होगी। नाउ इफ यू प्रेस 1 इट मीन्स विच फंक्शन विल बी कॉल्ड, राइट डाटा, इट मीन्स यू कैन राइट सम डाटा इन द फाइल। राइट डाटा फंक्शन कॉल हुआ है। अब उसके बाद ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्यों लिखी आ रही है,
एंटर अ नंबर आइदर 0 और 1, क्योंकि ये राइट डाटा वाला फंक्शन देखो, ये राइट डाटा वाला फंक्शन है इन विच ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है सबसे पहले, एंटर अ नंबर आइदर 0 और 1, ठीक है। फिर ये वाले फंक्शन की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप एंटर करो 1 या 0, अगर आप कोई रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो 1 एंटर कीजिए, अदरवाइज 0 एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने प्रेस किया 1, इट मीन्स आई वॉन्ट टू एंटर सम न्यू डाटा इन अ file. So I will enter the roll number 3, name of the student, let us assume any name, and marks, give it the marks. Then again it is asking for entering a number, then in that case I will pass 0. It means अगर मीन्स ए की वैल्यू मैंने 0 पास की है, सो माई लूप विल स्टॉप। ए की वैल्यू मैंने 0 दी, ब्रेक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट। देन अगेन कहाँ मूव ऑन करेगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अगेन वाइल लूप वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दिस वन। इज इट ओके? रन कैसे हो रहा है, समझ आ रहा है? अगेन इट इज आस्किंग फ्रॉम मी टू एंटर योर चॉइस, फिर मैं एंटर करूँगी चॉइस। अगर मुझे डाटा को रीड करना है देन आई विल पास 2, अगर मुझे कुछ अपडेट करना है रिकॉर्ड देन आई विल पास 3, अदरवाइज अगर मुझे कुछ भी नहीं ऑपरेशन परफॉर्म करना देन आई विल पास 4। इज इट ओके? समझ में आ गया कैसे? अब देखिए, जब राइट डाटा एंटर चॉइस 1 चॉइस एंटर की थी तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। रीड डाटा वाली जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी और अपडेट डाटा वाली इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। समझ आ गया? 1 by 1 ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र, जो भी यूज़र की चॉइस होगी अकॉर्डिंग टू दैट functions will be called. Is it okay? Suppose after entering the record I do not want to perform any other operation, so in that case I will press 4. मैं उस केस में चॉइस क्या दूंगी 4, that I do not want to perform any other operation and then press enter, so your loop will stop. इस केस में आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा।